Write a question. Write the equilibrium constant Kc for the reaction. The equilibrium constant Kc for the reaction N2O4 ब्रैकेट में G gives rise to 2NO2 ब्रैकेट में G is 4.63 into 10 to the power minus 3 is 4.63 into 10 to the power minus 3 at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. Bit 1. What is the value of Kp at this temperature? What is the value of Kp at this temperature? What is the value of Kp at this temperature? Bit 2. At 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. If partial pressure of N2O4 ब्रैकेट में G at equilibrium is 0.20 atm. At equilibrium is 0.20 atm, comma, calculate equilibrium pressure of N2O4. Calculate equilibrium pressure of N2O4. Okay, solve the question. There is a small change. You guys have to find equilibrium pressure of NO2 actually. Okay. Read the question, Shabbat. The equilibrium constant Kc for the reaction N2O4 gaseous gives rise to N2O4. Don't gossip. तुम दोनों डिस्कस करने से क्या आंसर सही हो जाएगा? अपना अपना करो. हाँ. Gives rise to 2NO2. इस चैप्टर में हर जगह ये सिंबल देना सीखो. Because unless and until it is reversible, equilibrium होगा ही नहीं. तो रिवर्सिबल होना ही है ना? हाँ. is 4.63 into 10 to the minus 3. 4.63 into 10 to the power minus 3. Okay. Temperature 25 degrees Celsius. Temperature is how much? 25 degrees Celsius. Okay. Bit 1. What is the value of Kp at this temperature? तो Kp क्या होता है? Kc into RT to the power del Ng. तो Kc तो पता है 4.63 into 10 to the power minus 3 into RT. R क्या लेंगे? ATM में है. तो क्या लेंगे R? 0.021. हाँ. 0.0821 into temperature 25 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में करना है. तो 25 plus 273 that is 298 केल्विन. तो into 298 to the power delta Ng. delta Ng क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में कितने? 2. रिएक्टेंट में कितना? 1. 2 minus 1. Solve this, you will get your answer. Next क्वेश्चन में क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम प्रेशर किसका दिया है? N2O4 कितना है? 0.20. 0.20. It is asking to find of NO2. है कि नहीं? तो Kp is what actually? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. पता होता है ना? तो प्रोडक्ट का प्रेशर, प्रोडक्ट तो गैस है ना? तो प्रेशर ऑफ NO2 लेंगे, बट कोफिशिएंट क्या है? 2. तो उसका क्या करेंगे? स्क्वायर. बिकॉज Kp मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर होना है. बाय रिएक्टेंट कौन है? N2O4. वो भी तो गैस है. तो प्रेशर ऑफ N2O4. तो Kp हमें यहाँ से मिल चुका होगा. इनटू 0.20 कर लो. दिस वन विल कम दिस साइड. उसके बाद स्क्वायर जो है इधर क्या हो जाएगा? रूट इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ NO2. सो दिस इज इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ व्हाट? NO2. अंडरस्टूड? हाउ यू हैव टू सॉल्व? जल्दी जल्दी करना है ना. फटाफट लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू राइट द वैल्यू ऑफ Kc for the reaction. The value of Kc for the reaction N2 ब्रैकेट में G, N2 ब्रैकेट में G plus 3H2 ब्रैकेट में G gives rise to 2NH3. 2NH3 ब्रैकेट में G is 0.50 at 400 degree Celsius. 0.50 at 400 degree Celsius. Full stop. Find the value of Kp. Find the value of Kp at 400 degree Celsius when
concentrations are expressed in when concentrations are expressed in mole per liter, concentrations are expressed in mole per liter and pressure in atmosphere and pressure in atmosphere. Okay, go for it. The value of Kc for reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3 at 400 degrees Celsius is 0.50. Find the value of Kp at 400 degrees Celsius. 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, which is what 400 plus 273, 673 Kelvin. It is asking you to find When concentrate, find the value of Kp. Kp. It is asking you to find that is what Kc into RT to the power ln. ये तो पता ही है 0.50 RT 0.0821 ATM और लीटर में वही होता है into temperature is how much 673 डेल्टा Ng कितना है 2 माइनस प्रोडक्ट साइड कितना है 3 plus 1 4 तो 2 minus 4 solve this you will get your answer 1.6. okay but आंसर Kp का होना चाहिए वो क्या होगा Kp का आंसर ATM to the power यूनिट भी तो चाहिए -2 खुद समझो इसका प्रेशर बाय इसका प्रेशर तो यहाँ पे कितना प्रेशर का स्क्वायर तो ATM स्क्वायर बाय रिएक्टेंट में कितना है ATM to the power 4 फाइनल आंसर कितना है ATM to the power -2 समझ रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर अ गैस एटमॉस्फेयर फॉर अ गैस रिएक्शन राइट फॉर अ गैस रिएक्शन N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 for a gas reaction N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 comma the partial pressures of H2 and N2 the partial pressures of H2 and N2 are 0.4 and 0.8 atmosphere. H2 and N2 are 0.4 and 0.8 atmosphere respectively. Full stop. The total pressure of the entire system is 2.8 atmosphere. Of the entire system is 2.8 atmosphere. Full stop. What will be the value of Kp? What will be the value of Kp if all concentrations are in ATM? Okay. Equation is what? N2 plus 3H2 2 ammonia. ठीक है क्या क्या दिया है Partial pressure of H2 0.4 and 0.8 ATM. ठीक है ये दोनों दिया है पार्शियल प्रेशर N2 का 0.8 पार्शियल प्रेशर H2 का 0.4 तो फिर और टोटल प्रेशर कितना बोला है 2.8 ATM. तो तीन ही तो चीज है ना N2H2 और एमोनिया दोनों का प्रेशर दिया है तो एमोनिया का कितना हो जाएगा अगर ये सब इक्विलिब्रियम में दिया है अगर सारा इक्विलिब्रियम में है तो नहीं होता तो क्या होता वो भी मैं बताऊं अगर इक्विलिब्रियम में है तो टोटल तो 2.8 है ये दो इतना है तो 2.8 माइनस 0.4 माइनस 0.8 होता है कि नहीं तो कितना हो जाता है 1.6 अब Kp निकालना है Kp क्या होगा प्रेशर ऑफ एमोनिया का स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का कुछ भी नहीं 1 तो 1.6 का स्क्वायर हाइड्रोजन कितना है 0.4 का क्यूब नाइट्रोजन कितना है 0.8 और यूनिट क्या हो जाता है ATM -2 क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ पे 4 है कि नहीं क्या था इसमें कुछ था तो Kp Kc का फॉर्मूला क्या लिख रहे हो Kc का बात ही नहीं किया क्यों यूज कर रहे हो बेवकूफ जैसे अगर नॉट एट इक्विलिब्रियम बोलता है तो क्या करते हैं N2 plus 3H2 gives rise to 2 ammonia है अगर इनिशियली ये तो बोल दिया है ना पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम के टाइम तो इनिशियली कितना होता है 0.8 0.4 और ये तो कुछ भी नहीं होता इक्विलिब्रियम के टाइम ये क्या होता है 0.8 और मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट है कि नहीं मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट होने से किसको देखना सीधा स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे N2 1 निकल रहा है तो 0.8 माइनस P यहाँ पे हाइड्रोजन 3 निकल रहा है तो 0.4 माइनस 3P
यहाँ पे अमोनिया 2 फॉर्म हो रहा है, तो 0 + 2p फॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट खत्म होता है, वो फॉर्म होता है। फिर क्या बोला, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 2.8, तो p टोटल 2.8 कैसे आएगा, 0.8 माइनस p प्लस 0.4 माइनस 3p प्लस 2p इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो यहाँ पे 0.8 प्लस 0.4 हाउ मच, 1.2, 1.2 माइनस 2p इज 2.8, सो 2p को उधर लो, तो 1.2 माइनस 2.8 इज इक्वल्स टू 2p। यहाँ पे ऑल्दो नेगेटिव आ जा रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये केस ही नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ। अगर नॉट एट इक्विलिब्रियम बोल देता, इनिशियल देता, तो तरीका ये है, ऑटोमेटिकली 2p क्या आता है, पॉजिटिव आता है कुछ, फिर p निकालते, ठीक है कि नहीं। सोचो 2p आता 1.4 आता, तो p कितना आता, 0.7, फिर तुम्हें क्या करना है, 0.8 माइनस 0.7 जो वैल्यू आता है, यहाँ पे भी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है और वहाँ पे भी जो वैल्यू आता है, उन तीनों प्रेशर को ऐसे ही यूज करके केपी निकालते हैं। यहाँ पे बट दे दिया था इक्विलिब्रियम वाला केस, तो ऐसे नहीं दिया रहेगा तो इस तरह से करना। यहाँ पे ऑल्दो नेगेटिव आ रहा है बिकॉज दैट क्वेश्चन इज नॉट ऑफ दिस फॉर्मेट, बट हैड इट बीन ऑफ दिस फॉर्मेट यू वुड हैव सॉल्व्ड लाइक दिस, ओके। Next, all of you give the heading facts about equilibrium constant. Facts about equilibrium constant. Write the first point. Facts about equilibrium constant. First point is a very large value of Kp or Kc. A very large value of Kp or Kc signifies forward reaction. A very large value of Kp or Kc signifies forward reaction. Bracket में towards completion or nearly. Towards completion or nearly. मतलब अगर Kp Kc का बहुत ज़्यादा वैल्यू आया है, इसका मतलब Kp क्या था, K का फॉर्मेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K was what, Kf by Kp, फॉरवर्ड K by बैकवर्ड K। अगर K का वैल्यू बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड ज़्यादा है कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कहाँ पहुँच गया, एंड की तरफ। फॉरवर्ड अगर बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत आगे तक चला गया, तो रिएक्शन बीचों बीच नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, a very small value of Kp or Kc, a very small value of Kp or Kc signifies reaction does not go to any significant extent, signifies that reaction has not reached to any significant extent, मतलब शुरू ही नहीं हो पा रहा है। अगर K बहुत छोटा है, इसका मतलब कौन बड़ा है, Kb, तो बैकवर्ड इतना ज़्यादा हो रहा है कि रिएक्शन आगे ही नहीं जा पा रहा है, तो रिएक्शन हैज नॉट रीच टू एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। नेक्स्ट यू राइट, अ रिएक्शन likely to reach equilibrium, third point, a reaction likely to reach equilibrium has neither very large nor very less Kp or Kc, has neither very large nor very less Kp or Kc, has neither very large nor very less Kp or Kc. नेक्स्ट राइट उसी में फोर्थ में राइट रिलेशन between K when a reaction is reversed, relation between K if a reaction is reversed. Okay, so let us understand this. What did I say? If a reaction is proceeding forward, suppose ऐसा दिया है A plus B gives rise to C plus D और इसका K है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, अगर इसको उल्टा कर दें C plus D, so K अभी क्या हो जाएगा 1 by K, रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे K क्या था,
इसके लिए k क्या होगा c टू द पावर समथिंग d टू द पावर समथिंग बाय ab, बट इस केस के लिए क्या है a टू द पावर समथिंग b टू द पावर समथिंग बाय c प्लस d, मतलब बाई c का पावर और d का पावर, मतलब उल्टा नहीं हो जा रहा है। तो अगर उसका k है तो इसका क्या हो गया 1 बाई k, राइट इट डाउन, अगर रिएक्शन रिवर्स हो रहा है तो। इसके बाद वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ एनी इंटीग्रल मल्टीपल इज मल्टीप्लाइड, इफ इंटीजर इज मल्टीप्लाइड टू रिएक्शन, मल्टीप्लाइड टू रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे कि सपोज है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स राइज टू SO3, सारे गैस हैं। तो मान लो इसका अगर k है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है k, तो बहुत सारी किताबों में ऐसा भी तो लिखा रहता है × 2 कर दो, मल्टीप्लाई 2, so this becomes what 2SO2 plus O2 2SO3, है कि नहीं। अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो अभी आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस जगह में k क्या था, k वाज खाली SO3, क्या था SO3 टू द पावर 1 बाई SO2 टू द पावर 1 एंड O2 टू द पावर हाफ, और यहाँ पे k क्या हो जाएगा SO3 का स्क्वायर बाई SO2 का भी स्क्वायर और O2 का भी हाफ था तो स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रिएक्शन के लिए Kc अगर k था तो यहाँ पे Kc कितना हो जाएगा, Kc डैश क्या होगा k स्क्वायर। इस जगह में अगर Kc वाज k, इस जगह में Kc डैश क्या हो जाएगा 1 बाई k। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन, जो इंटीजर मल्टीप्लाई हो उतना पावर में चढ़ाना है, ठीक। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, if a reaction proceeds by several elementary reaction, if a compound reaction is due to few elementary reaction, few elementary reaction मतलब 2-3 रिएक्शन को जोड़े, मानो A से आया है B, उसका K है K1, B से आया है C, उसका K है K2 एंड C से कौन आया है D, उसका K है K3। इन सब को मिला दिया जाए तो C एंड C कैंसिल आउट, B भी कैंसिल आउट, तो क्या बोलेंगे A से D आ रहा है, तो इसका जो Kc होगा दैट इज व्हाट एक्चुअली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल थ्री, K1 into K2 into K3। आप सोच रहे हो कि कैसे डाउट दिखा, K1 विल बी व्हाट B by A, K2 क्या हो जाएगा C by B, K3 क्या हो जाएगा D by C। इसका जब मैं KC निकाल रहा हूं तो क्या होगा D by A, D by A होगा। मैं काम करूंगा ऊपर में भी B मल्टीप्लाई किया, नीचे में भी किया, और ऊपर में भी C मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे में भी C। अब अरेंज करूंगा, B by A चाहिए तो B लो A लो, तो B by A को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा K1, फिर K2 C by B, C में डॉट लगाता हूँ, B में भी डॉट, C by B दिख रहा है तो क्या है K2, फिर क्या चाहिए D by C, K3, इधर स्टार मार्क इधर भी स्टार मार्क, D by C हो कि नहीं, so that is what K3। सो अगर 3-4 एलिमेंट्री रिएक्शन है तो क्या करना है मल्टीप्लाई, इसमें अगर कहीं कुछ मल्टीप्लाइड है तो उसका क्या कर देना है पावर। सोचो यहाँ 2b 2c होता है तो क्या कर देते हैं k स्क्वायर कर देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ इट हैज टू बी डन, क्लियर। राइट क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, राइट। CO plus H2O, CO plus H2O gives rise to CO2 plus H2, gives rise to CO2 plus H2, right। If equilibrium constants are 2CO plus O2, 2CO plus O2 gives rise to 2CO2, gives rise to 2CO2। साइड में देखो K1 equals to 40 into 10 to the power minus 3, K1 equals to 40 into 10 to the power minus 3,
उसके नीचे 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O। K2 लिखो 36 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके सॉल्व। बताओ Calculate equilibrium constant for बताओ मेन चीज बताओ। CO plus H2 gives CO2 plus H2. CO प्लस H2O गिव्स, CO2 plus H2. इसका हमें K चाहिए, वही पूछा है ना? दिया क्या है? Equilibrium constant of 2CO plus O2 gives 2CO2 equals to 40 into 10 to the -3. कितना दिया है इसका K1? 40 into 10 to the -3. ओके हाँ नेक्स्ट 2H2 plus O2 gives 2H2. हाँ K2 equals to 36 into 10 to the -2. 36 इंटू 10 टू द पावर -2. ये दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे K के लिए हमें क्या चाहिए। K इज एक्चुअली व्हाट, CO2 H2 बाई CO और H2O। यहां से देख के कुछ पता करेंगे। हमें कौन ऊपर चाहिए? CO ऊपर चाहिए। CO कहाँ पे चाहिए? CO है किधर? बट CO लेफ्ट में है। लेफ्ट में है तो ऊपर में आएगा क्या कभी भी? CO को राइट में लाएंगे तभी तो ऊपर आ पाएगा। सॉरी CO नीचे है तो ठीक जगह में है। सॉरी CO नीचे है तो इसको एज इट इज ही रखेंगे क्योंकि नीचे चाहिए तो नीचे आता है। बट हमें खाली CO के पावर में कुछ है क्या? बट यहाँ CO के पावर में क्या है? 2। हमें वो नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? CO सब में हाफ मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? खाली CO2 तो K1 K कितना हो जाएगा इसका? K3 ले लो। K3 क्या हो जाएगा? 1 बाई K1 नहीं, K1 टू द पावर हाफ, क्योंकि मैंने हाफ मल्टीप्लाई किया ना। इस इक्वेशन के साथ क्या मल्टीप्लाई किया? जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका K के साथ उतना ही पावर चढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 40 इंटू 10 टू द पावर -3। बाकी एज इट इज है। इसको रोमन में आई ले लो क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड चाहिए और लेफ्ट साइड CO चाहिए तो लेफ्ट साइड CO है। अभी H2O लेफ्ट साइड में चाहिए। CO के बाद कौन चाहिए? H2O किधर है? पहले लेफ्ट लाएंगे तो 2H2O प्लस O2 तो क्या हो जाएगा इसका? K4 कितना हो जाएगा? 1 बाई K2। रेसिप्रोकेट किए मतलब क्या करना है? 1 बाई, तो 1 बाई K2 मतलब 1 बाई 36 इंटू 10 टू द पावर -2। बट H2O के आगे क्या है? 1। तो H2O के आगे 1 है तो यहाँ क्या है? 2। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ। तो H2 प्लस हाफ O2। हाफ मल्टीप्लाई किया मतलब K5 क्या हो जाएगा? K4 टू द पावर हाफ, है कि नहीं? तो K4 टू द पावर हाफ मतलब 1 बाई रूट ओवर ऑफ 36 इंटू 10 टू द पावर -2। अब क्या कर देना, इसको रोमन में क्या ले लोगे? 2। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देने से हमें जो चाहिए वो मिल जा रहा है। ऐड करो इसको और इसको, CO प्लस H2O जो चाहिए, हाफ O2 और हाफ O2 क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? CO2 और H2, CO2 प्लस H2। आ गया ना रिएक्शन? तो 1 और 2 को ऐड करने से फाइनल रिएक्शन आ रहा है। तो क्या करेंगे? K क्या करते थे? अगर ऐड करते थे रिएक्शन तो मल्टीप्लाई। तो K नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इसका कौन है? K3, इसका क्या है? K5। समझे? तो 40 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई रूट 36 इंटू 10 टू द पावर -2। तो 4 इंटू 10 तो 4 कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर -1 बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -1। तो 1/3 आंसर। इट वाज वेरी इजी। ठीक है, कितना? नेक्स्ट ऑल ऑफ यू राइट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। Bit 1 homogeneous. Bit 1 homogeneous. Right, if all the reactants and products are in same phase, if the reactants and products are in same phase, the reaction is said to be homogeneous. If reactants and products are in same phase, then reaction is said to be homogeneous. 2-3 लाइन छोड़ दो। Then reaction is said to be homogeneous. Wear your mask. You. ठीक है?
नेक्स्ट heterogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium. Right, if reactants and products are in different phase, if reactants and products are in different phase, then the equilibrium is said to be heterogeneous. If reactants and products are in different phase, then the equilibrium is said to be heterogeneous. Okay, now I will explain you. Next, what did I say? Homogeneous. Homogeneous में क्या होना चाहिए? दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फेज सेम होना चाहिए. जैसे कि क्या है, 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3. देखो सारे के सारे गैस हैं कि नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, या तो लिक्विड में ही देख लेते हैं हम लोग, कर देते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH लिक्विड में होता है, प्लस अल्कोहल करो C2H5OH, पढ़े हो सारे के सारे क्लास 10th में. क्या फॉर्म होता है? ईस्टर फॉर्म होता है. तो C2H5 सॉरी CH3 COO C2H5 ये भी लिक्विड है, प्लस H2O ये भी लिक्विड है. चारों के चारों सेम स्टेट में है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट? होमोजेनियस. हेटेरोजेनियस होने से अलग होगा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का. ठीक है, मान लो NH4 NS, सो इसको अगर करेंगे तो एमोनिया प्लस H2S हो रहा है. बैलेंस करते हैं. 6, इसको छोड़ दो. नहीं तो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूरिया का ले लो, NH2CO NH2. यूरिया तो सब कुछ देखे हो क्या होता है? सॉलिड होता है. अगर ये डिसोसिएट करता है तो यूरिया क्या फॉर्म करता है? एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं? बैलेंस करो, हो रहा है बैलेंस. देखो तो कितना आ रहा है. ये भी बैलेंस नहीं हो रहा है. क्या क्या प्रोडक्ट्स आता है एमोनियम यूरिया का? एमोनियम आता है, आयंस आता है. आई डोंट थिंक सो. फोर इंटू 2 8. चेक करो एक बार डिसोसिएशन ऑफ यूरिया. पॉज कर दो जब so we can take example of urea plus water gives rise to NH4OH plus CO2. देखो स्टेट अलग है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड. NH4OH is liquid again and this is gas. So this is what? Heterogeneous equilibrium. क्योंकि स्टेट्स अलग है, सारे स्टेट सेम होने से होमोजेनियस. ओके, राइट. All of you write next question. Sodium ammonium carbonate. Sodium ammonium carbonate. सॉरी सोडियम बोल रहा हूँ. सॉलिड एमोनियम कार्बोनेट. सॉलिड एमोनियम कार्बोनेट dissociates completely into ammonia, dissociates completely into ammonia and carbon dioxide. Ammonia and carbon dioxide as shown at 25 degrees centigrade. As shown at 25 degree centigrade. Comma, the total presence of the gases in equilibrium, the total presence of the gases in equilibrium with solid, the total presence of gases in equilibrium with solid is 0.116 atm, is 0.116 atm. Full stop. What is the equilibrium constant of the reaction? What is the equilibrium constant of the reaction? Okay, solve this question. Solid ammonium carbonate dissociates completely into NH3 and CO2. आराम से, कहीं जाना नहीं है तुम्हें. Ammonium carbonate is solid. It dissociates to form ammonia
CO2 प्लस वाटर लिक्विड गैस। ठीक है, हेट्रोजीनियस समझ में आ गया। बैलेंस्ड है कि नहीं देख लेते हैं, कर लेते हैं बैलेंस। नाउ इट इज बैलेंस्ड आई सपोज, राइट? ठीक है, आगे। The total presence of the gases in equilibrium with solid is 0.116 atm. Slowly read again louder. The total pressure of the gases in equilibrium with The solid total pressure of gases in equilibrium is how much? 0.116 atm. 0.116 atm। ये टोटल प्रेशर इन इक्विलिब्रियम का बात कर रहा है। ओके, हाँ। What is the equilibrium constant of the reaction? What is that? It is asking you Kp। देख के ही समझ में आ जा रहा है भाई, गैस तो दो ही हैं। तो बहुत सिंपल है, प्रेशर ऑफ CO2 कोफिशिएंट क्या है 1, वाटर को तो ले नहीं सकते बिकॉज दैट इज लिक्विड, इनटू प्रेशर ऑफ एमोनिया क्योंकि वो भी गैस है, स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं ना, रिएक्टेंट तो सॉलिड है, लिख सकते हैं क्या? तो यही आंसर है, इतना समझ में आ गया। बट ये सारी जो चीजें होती है क्या होती है? पार्शियल प्रेशर होती है। तो पार्शियल प्रेशर है तो जानना पड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था सबसे पहला चैप्टर जब, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ एमोनिया इनटू टोटल प्रेशर। ये पढ़ना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे नहीं पता। ले लेते हैं कि मान लो ये इनिशियली जब टाइम 0 था तो ये 1 है और प्रोडक्ट कुछ है ही नहीं। जब भी आइडिया ना हो रिएक्टेंट को 1 ले लो और सॉल्व करके देख लो क्या होता है। कुछ टाइम के बाद मान लो ये डिसोसिएट हुआ 1 - x, एक यूनिट के लिए x डिसोसिएट हुआ, यहाँ पे कितना यूनिट फॉर्म हुआ? तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे कितना यूनिट फॉर्म हुआ? यहाँ पे भी। जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, गैस का मोल फ्रैक्शन है तो सिर्फ गैसेस ही कंसीडर होंगे। सो यहाँ पे कैसे निकलेगा? PCO2 इज मोल्स ऑफ CO2 बाय टोटल मोल्स। CO2 के मोल्स कितने हैं? x, क्योंकि इक्विलिब्रियम में देखना है। टोटल मोल्स में कौन कौन आएगा? एमोनिया और CO2 ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो सॉलिड और लिक्विड है ना। गैस में ही देखना है। तो 2x + x इनटू टोटल प्रेशर क्या था? 0.116। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? x/3x कट जाएगा तो 0.116/3। एमोनिया के लिए जब देखेंगे उसका मोल्स कितना है? 2x बाय टोटल, मोल फ्रैक्शन बाय टोटल, तो 2x + x। सारा पढ़ाई को कंप्लीट पढ़ोगे तो ही कुछ सीखोगे। Everything has got its own application, but unless and until you study, सब आ नहीं जाएगा। एंट्रेंस क्वेश्चन आते ही लटक जाते हो। तो CO2 का प्रेशर इज हाउ मच? 0.116/3 into 2 into 0.116/3 का स्क्वायर। How many had got it correct? I don't think many because this was a J question. Calculation mistake. Will not be considered. Right, next question. When sulfur in the form of S8, when sulfur in the form of S8 is heated at 900 Kelvin, the initial pressure of 1 atm falls by 29%. The initial pressure of 1 atm falls by 29% at equilibrium. Falls by 29% at equilibrium. Full stop. This is because of conversion of S8. This is because of conversion of S8 to S2. This is because of conversion of S8 to S2. Subscript में है ना? Full stop. Find the value of equilibrium constant for this reaction. Find the value of equilibrium constant for this reaction. For your information, S8 भी gaseous state में होता है and S2 भी gaseous state में होता है। Rhombic sulfur, red sulfur, ठीक है ना? पढ़ो।
when sulfur in the form of acid is heated at 900 Kelvin. प्लीज बी लाउडर, जब जोक्स क्रैक करते हो तो चिल्लाते हो. When sulfur in the form of acid is heated at 900 Kelvin, the initial pressure of 1 atm. आराम से 900 केल्विन The and initial pressure is 1 atm हाँ. falls by 29% at equilibrium. अच्छा, तो इनिशियल प्रेशर जो भी था 1 atm इसका, वो प्रेशर घट के 29% डिक्रीज हुआ. बट किसका? रिएक्टेंट क्या बोला? डिक्रीजेस बाय 29%. ठीक. हाँ. This is because of conversion of acid to S2. ओके. Find value of equilibrium constant for this reaction. अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन. S2 ठीक. इनिशियली 1 atm है, ये कुछ भी नहीं है. इक्विलिब्रियम में ये 29% खत्म हो जाएगा. तो 29% ऑफ 1 कितना होता है? 0.29. 29 by 100 into 1. एक यूनिट खत्म होने के लिए कितना कंजम्पशन हो? 0.29. कितना फॉर्म हो रहा है? बैलेंस करेंगे तो 4. तो 0 plus 4 into 0.29 है कि नहीं? तो 0 point ये कितना आया होगा? 71. ये कितना आ रहा है? 9 into 4 36, 3, 8 and 11 1.16. सो अभी Kp पूछा है क्या? So Kp is what? S2 का प्रेशर to the power 4 by pressure of acid. कितना आसान? 1.16 to the power 4 by 0.71. Is it what you are getting? I don't think so. 2.55. तो ATM to the power -2 क्योंकि to the power 4 by नहीं by 3 4 खाली 3. तो ये ATM to the power 4 by ATM. तो क्या बचेगा? ATM क्यूब. समझे? कितना आ रहा है? 2.55. तो आई गेस सब गलत ही थे. Will not be considered.